I hope you all are doing well. In the previous lecture, we have seen the flowing topics blood, blood group, blood clotting, RH blood group. And in today's lecture, we will revise the topic blood vessels, human circulatory system, heart and its functions and the lymph. So let's get started with our topic human circulatory system. आज हम अपने हृदय के बारे में, प्यारे प्यारे हार्ट के बारे में, कैसे वर्क करता है हमारा हार्ट, कैसे हार्ट बीट जनरेट होता है, जो लब और डब की साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको धक 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 बोलते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और बहुत मज़े से पढ़ेंगे क्या होता है एक्चुअली हार्ट में। ठीक है, तो पहले ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं। अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे, if you go through the NCERT lines chapters, then you will see there are 3 blood vessels that is mentioned in the book. One is the arteries, veins and the capillaries. Okay, arteries, veins and capillaries. So can I write this thing? We will revise it very quickly. Okay, okay. Now the first one is artery. Can you write this artery? Artery लिख दिया मैंने. Veins, arteries, veins and capillaries. Okay, capillaries, capillaries, capillaries जो होते हैं बेटा एक्सट्रीमली थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं. आर्टरीज, आर्टरीज फर्दर डिवाइड करते हैं आर्ट्रियोल्स में, एंड आर्ट्रियोल्स फर्दर 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 डिवाइड करते हैं कैपिलरीज में, एंड कैपिलरीज आर वेरी वेरी थिन. इसका फंक्शंस क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेज में रोल प्ले करते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली सिंगल लेयर्स के बने होते हैं. दैट इज कॉल्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को बेटा हम लोग बोलते हैं दैट इज एंडोथेलियम ऑल्सो. सो कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है एंड दैट इज कॉल्ड एंडोथेलियम. उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एंडोथेलियम. और ये सिंगल सेल्स के बने होते हैं, सिंगल सेल्स, सो डैट की डिफ्यूज़न बहुत ईजिली हो जाए. ठीक है, सिंगल सेल्स के बने होते हैं. प्ले रोल इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, gases, etc. Okay, now if I talk about the arteries and veins are made up of 3 layers. कितने layers के बने होते हैं? 3 layers के बने होते हैं. There are 3 layers in arteries and veins. The outermost layer, the external layer is called tunica externa. The middle layer is called tunica media, and the innermost layer that is called tunica interna or intima. And all these 3 layers are made up of 3 different kinds of fiber tissues. Okay, now if I talk about the outer layer, that is the external layer. External layer बेटा जिसको बोलते हैं tunica externa. We call it tunica externa. Okay, the second layer is the middle layer. Middle layer is called tunica media. उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? tunica media. And the third layer is the innermost layer, जो सबसे अंदरूनी लेयर है. inner layer that is called tunica. उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं tunica interna और intima. tunica interna और intima. Okay, all these 3 layers are made up of tunica externa. की बात करें, this is made up of fibrous connective tissue. fibrous connective tissue से बने होते हैं, प्लस कोलेजन फाइबर से बने होते हैं. किससे? कोलेजन फाइबर से. 1 minute. Okay, what is this?
collagen fibers. Collagen fibers. Now the middle layer is made up of smooth muscles and elastic fibers. Smooth muscles plus elastic fiber. ठीक है. और जो tunica interna है, that is also called intima. This is made up of simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium से बने होते हैं. Simple squamous epithelium. Okay, now if I talk about the arteries and veins, as you all know, आपको पता होगा कि arteries में blood प्रेशर से मूव करते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर से मूव करता है, वेयर इज इन वेन्स ब्लड प्रेशर से मूव नहीं करते हैं. वाई इज इट सो दैट द ब्लड मूव एट हाई प्रेशर इन द आर्टरीज वेयर एज ब्लड डजंट फ्लो एट हाई प्रेशर इन द वेन्स? इट्स बिकॉज ऑफ द डायमीटर ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज एंड द वेन्स. द डायमीटर ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी इज नैरोअर एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द वेन्स. वेन्स की ल्यूमेन की अगर हम बात करें तो जो ल्यूमेन होती है, आर्टरीज की जो ल्यूमेन होती है वो नैरो होती है. तो ब्लड जो होता है बेटा वो बहुत ही हाई प्रेशर पर मूव करता है, वेयर एज वेन्स की जो नैरो होती है वो बड़ा होती है, ठीक है, लार्ज होती है. तो ब्लड जो है वो हाई प्रेशर पर मूव नहीं करता है. तो क्यों होता है? वाई द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज इज नैरोअर एंड ल्यूमेन ऑफ वेन इज नॉट नैरोअर, इट इज़ वाइडर. इट्स बिकॉज ऑफ दिस मिडिल लेयर. विच लेयर? This middle layer, that is tunica media. Tunica media जो है बेटा that is thick in artery. आर्टरी में थिक होता है, मोटा होता है. वेन्स में ये लेयर tunica media is thin, पतला होता है. ठीक है. तो आर्टरीज में जो है बेटा, if I talk about आर्टरीज में, आर्टरी में tunica media is thick in arteries. Okay, whereas in veins की अगर हम बात करें बेटा तो veins में this is thin. Okay, if I draw the diagram, then it will be something like this is the first layer. Okay, this is the first layer of tunica externa. And this is the second layer of tunica media. ठीक है, this is tunica externa, this is tunica media. Okay, and the third one is this tunica interna, and this is the lumen. This is the lumen of vein, which is wider. You can see. Now I will draw the second diagram for the artery. This is the external layer. Okay, this is tunica externa. Okay, now this is the tunica media. Okay, and this is the innermost layer is the tunica interna, and you can see the lumen. Lumen is narrower, it's very small in size. This is lumen of artery which is narrow. Why this is narrow? Because the middle layer, this middle layer is thick. It is quite thick. This is thick. ये मोटा होता है बेटा. ठीक है, क्या होता है? मोटा होता है. ये मोटा होता है. इतना मोटा होता है. tunica media is this much thick, whereas in this tunica media is not much thick as compared to the artery, and therefore the lumen is wide. Now, so can I just revise it in a single in 2 or 3 lines? So arteries, veins and capillaries. Capillaries single cell का होता है. ठीक है, simple squamous epithelium that is called endothelium, and its role is in exchange of gases and nutrients. If I talk about the arteries and the veins, these are made up of 3 layers, that is tunica externa, tunica media and tunica interna, that is intima. The tunica externa is made up of
fibrous connective tissue and collagen fibers, whereas the tunica media, that is the middle layer, that is made up of smooth muscles and elastic fibers, and the last, the innermost layer is, that is intima, is made up of simple squamous epithelium. If I talk about the lumen of the arteries and veins, आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है बेटा वो नैरो होता है बिकॉज द थिकनेस ऑफ दिस मिडिल लेयर, ट्यूनिका मीडिया के थिकनेस के कारण ही ल्यूमेन नैरो होता है आर्टरीज का, एंड दैट्स व्हाई ब्लड मूव एट हाई प्रेशर, वेयर इज इन वेन्स, अगर हम वेन्स की बात करें तो ये जो मिडिल लेयर है वो थिकन नहीं होता है वेन्स में, एंड देयरफॉर ब्लड डजंट मूव एट हाई प्रेशर इन वेन्स. सो इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ वाल्व, तो वाल्व किस में प्रेजेंट होगा, आर्टरीज में होगा या फिर वेन्स में होगा. अगर आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर पर ऑलरेडी मूव कर रही है तो देयर इज नो चांस दैट द ब्लड विल फ्लो बैक, बट इन केस ऑफ वेन्स blood is not moving at high pressure, so there is a chance that the blood can flow back also, right? So presence of valve किस में होगी, आर्टरीज में होगी या फिर वेन्स में होगी, वेन्स में होगी. तो वेन्स में there is a presence of valve to prevent the backflow of blood, whereas in artery no valve, no valve. Okay, except pulmonary artery. Now moving to the next, हार्ट, ह्यूमन हार्ट. यू नो, अब हम ह्यूमन हार्ट के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. हमारा प्यारा सा हार्ट जो हार्ट बीट करता है और कैसे करता है, क्या क्या फीचर्स है, वी विल सी. ना हमारा हार्ट जो है बेटा, द फर्स्ट पॉइंट दैट वी कैन राइट इज दैट इज इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड. मीजोडर्मली डिराइव्ड, मीजोडर्म लेयर से बना है. ठीक है, मीजोडर्म लेयर से हमारा हार्ट बना है. ओके फाइन. आवर हार्ट इज मायोजेनिक. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मायोजेनिक? मायोजेनिक का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा जो ब्रेन है, तो ब्रेन में क्या है, ब्रेन में nervous tissue neurons है. they have the capacity or the potential to generate its own impulse and action potential. neurons generate करते हैं, and that impulse is carried by the nerves, the motor nerves you can say, and then according to that our muscles or our particular part of the body react. But the heart doesn't need neural signals from the neurons. It has its own special kind of tissues that is called nodal tissues. और ये नोडल टिश्यूज़ के पास खुद की पोटेंशियल होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की, इम्पल्स जनरेट करने की. दे डोंट वेट फॉर द ब्रेन कि आप मुझे सिग्नल्स दो तब मैं बीट करूँगा. नो, that is not the case. It has its own mechanisms to generate its own action potential, and that's why the heart is called myogenic in nature. Okay, even if you remove the heart from the body, the heart, you will see the heart is beating. ठीक, हार्ट जो है वो बीट करते रहता है. कैसे? क्योंकि उसके पास खुद का अपना स्पेशल टाइप का टिश्यू है जिसे नोडल टिश्यू बोलते हैं, एंड दैट नोडल टिश्यू जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल. सो कैन आई राइट दिस थिंग हियर? व्हाई द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक? बिकॉज it generates its own AP, that is action potential, or you can say impulse. हम लोग impulse भी बोल सकते हैं. ठीक है. Now our heart is 4 chambered. ये तो सबको पता है कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं. 4 चैम्बर. Our heart is 4 chamber. ओके, 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में. 2 atria and 2 ventricles. ऊपर वाले को एट्रिया बोलते हैं ना बेटा, ऊपर वाले को एट्रिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? 2 atria and 2 ventricles. The upper one is the atria. The upper one is the atria, which is smaller in size as compared to the ventricles. Okay, and the below one is the ventricle, which is larger in size, जो कि एट्रिया से बड़ा होता है. ठीक है. Now our heart is protected
heart is very vital organs of human body, so it must be protected by some kind of layers, just like the lungs में क्या था, pleura था, double membrane से cover था lungs, and the same way our heart is also protected by a double membranous bag that is called pericardium, protected by double membrane that is called pericardium. We call it pericardium, बेटा उसको बोलते हैं, ठीक है. Pericardium enclosed with pericardial fluid. पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है उसमें ना. अगर हार्ट की साइज की बात करें तो आप एक मुट्ठी बंद करोगे ना, जब मुट्ठी बंद करोगे तो ये जो फिस्ट बनता है इसी के साइज का हमारा हार्ट होता है, ठीक है. तो क्लेंज्ड फिस्ट साइज इज ऑफ क्लेंज्ड फिस्ट. मुट्ठी के आकार का हमारा हार्ट होता है, ठीक है. मुट्ठी के आकार का, जिसका बहुत बड़ा हाथ है, पाम है, तो उसका उतने साइज का हार्ट होगा. तो छोटा सा बेबी होता है, उसका हाथ छोटा सा होता है, पाम छोटा सा होता है, तो उसका हार्ट भी उतना ही छोटा सा होगा, ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, इट्स टिल्टेड साइलेंटली टूवर्ड्स लेफ्ट की तरह बेटा जो होता है साइलेंटली टिल्टेड होता है, ठीक है. तो ब्रीदिंग वाले चैप्टर्स में हमने देखा था ना कि देयर इज अ कार्डियक नॉच इन द लेफ्ट लंग. दैट कार्डियक नॉच, उसी कार्डियक नॉच में हमारा हार्ट होता है, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई द लेफ्ट लंग इज लिटिल स्मॉलर दैन द राइट लंग. ओके, सो टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड इट इज प्रेजेंट इन द थोरैकिक चैम्बर. ये हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में भी बेटा, थोरैकिक चैम्बर में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है. नाउ द 7th point what can I write is कि ह्यूमन हार्ट का जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकुलर वॉल्स जो होते हैं बेटा, उसमें मसल्स ज़्यादा होते हैं. मोर मसल्स आर प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स एज कम्पेयर टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ventricular musculature is thicker than the atrial musculature. Okay, ventricular walls are thicker. Ventricular walls are thicker than atrial walls. Okay, now there are some valves present in the heart. Valves present होते हैं हार्ट में. There are some septums होते हैं हार्ट में जो डिफरेंट करते हैं. जो 4 चैम्बर्स बोल रहे हैं ना बेटा, तो 4 चैम्बर्स को कुछ तो डिवाइड करता होगा ना. So these are called septum, which are present between 2 atria, 2 ventricles, and between the atria and the ventricles. What are those septum? We will see shortly. Okay, so let's first see this diagram. इस diagram को पहले समझते हैं. Okay, so this is our left atria, this is our left ventricle, this is our right atria, and this is our left ventricle. Okay, all these 4 are separated by a septum. Okay, the septum present between the left atria and the left ventricle is called atrioventricular septum. I am talking about the septum, not valves here. Okay, these 2 chambers, the atria, the left and the right atria, is separated by a septum that is called, if I draw the diagram, wait, if I draw the diagram like this, selected tilted towards the left. Okay, okay, now this is the left atria, this is the left ventricle, this is the left this is the right atria, and this is the left, this is the, wait, this is the right atria and this is the right ventricle. Now these 2 atria are separated by a septum that is called interatrial septum. Interatrial
सेप्टम, वी कॉल इट इंटर एट्रियल सेप्टम, क्योंकि दो एट्रिया के बीच में आया है सेप्टम, दैट इज कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम. नाउ द सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इसको बोलते हैं. ठीक है. नाउ द सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, दैट इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम उसको बोलते हैं. ठीक है. तो देयर आर 3 सेप्टम प्रेजेंट इन द हार्ट विच आर सेपरेटिंग दीज चैम्बर्स. One septum is present between the 2 atria, and the one septum is present between the 2 ventricles, and the one septum is present between the atria and the ventricle, that is atrioventricular septum. Between the 2 atria is interatrial septum, and between the 2 ventricles is interventricular septum. Okay. Now we will see the heart. Labeling of heart we will see shortly, and their related functions as well. Now if you can see this heart, this is the diagram that is given in the NCERT, and we must understand what are these veins, what are these chambers, and what are these white thread like structures called, and what are their functions. Okay, this arc, this one, this big one, this is called beta aorta. What we call it? Aorta. The big one, aorta, we call it aorta. And this, the function of aorta is to carry oxygenated blood from the left ventricle to the whole heart. ये aorta oxygenated blood को carry करेगा पूरे body में, और ये निकलेगा कहाँ से? Left ventricle से. Now these, कैन यू से दिस वेसल इज ओपनिंग इन लेफ्ट वेंट्रिकल में बेटा, ये खुल रहा है. ठीक है. तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड इसमें मूव करेगी. किस में मूव करेगी? इसमें मूव करेगी. तो इसका क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी. दिस पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बोथ द लंग्स. ओके. सो दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी. Pulmonary artery. Okay, now what are these two here and here? These two are, can you see that these are opening in left atria में खुल रही है. left atria में खुल रही है मतलब ये क्या होगी? pulmonary veins होगी. This pulmonary, there are 4 pulmonary veins which are carrying oxygenated blood from both the lungs to the left atria. left atria में pulmonary veins जो 4 हैं दोनों लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और कहाँ लाती है? लेफ्ट एट्रिया में लाती है. सो ये क्या हो गई हमारी? ये हमारी हो गई पल्मोनरी वेन्स. नाउ ये क्या है बेटा? ये क्या है? एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में वाल्व है. क्या है? वाल्व है. वाल्व का फंक्शन क्या होता है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्व खुलेगा और ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में आ जाएगी. और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वी डोंट वांट टू कि ब्लड वापस एट्रिया में जाए. सो दिस वाल्व, दे शुड बी गेट प्रेजेंट बिटवीन दीज 2 चैम्बर्स, सो डैट कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये गेट शट हो जाए, गेट बंद हो जाए, सो दैट ब्लड वापस एट्रिया में ना जाए. तो उस गेट का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गेट प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल? दैट गेट इज कॉल्ड bicuspid valve. वी कॉल इट bicuspid valve बेटा बोलते हैं. उस गेट का नाम है bicuspid, और मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट? मिट्रल वाल्व. MITRAL, मिट्रल वाल्व. ओके. ये जो वाल्व है, ये जो गेट है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये बंद हो जाएगा गेट, और जो ब्लड है वो वापस एट्रिया में नहीं जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड AV bundle और bundle of His. वी कॉल इट AV bundle और bundle of His. ओके. ये साइंटिस्ट के नाम पर है.
एवी बंडल कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, आप देखो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, एवी से हो रही है। ये क्या है, एवी नोड है, एवीएन, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसी से बेटा कंटिन्यू हुआ है ये फाइबर्स, दैट इज कॉल्ड एवी बंडल और बंडल ऑफ हीस। एंड देन बंडल ऑफ हीस फर्दर बेटा बाइफरकेट कर जाता है, इमीडिएटली डिवाइड कर जाता है बिटवीन द लेफ्ट एंड दी right ventricles. Okay, what I have written, this should be not L, here should be R beta, right ventricle. Apology for the mistake, this should be right ventricle and here is the left ventricle right now. Okay, what is this, this is the ventricle, left ventricle, this is the right ventricle. Okay, this is the right ventricle. So right ventricle और left ventricle को कौन सेपरेट कर रहा है, interventricular septum, interventricular septum, interventricular septum बेटा दो वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, जो दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है. दिस इज कॉल्ड द एपेक्स ऑफ हार्ट. हार्ट का एपेक्स है बेटा ये, ठीक है, नीचे वाला. दिस इज नॉट कॉल्ड एपेक्स, ये नहीं कि ऊपर में तो ये एपेक्स हो गया, नहीं, हार्ट का एपेक्स ये है, नीचे वाले को एपेक्स ऑफ हार्ट बोलते हैं. नाउ वी विल सी दिस पार्ट. ओके, हार्ट हमारा है यहाँ लेफ्ट साइड में. सो ब्लड कैरी कर रहे, देयर शुड बी अ वेन विच इज कैरिंग ब्लड बिलो द हार्ट and there should be a vein that is carrying blood from above the from the body parts above the heart. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हार्ट हमारा मिडिल यहाँ पर है, हार्ट लेफ्ट साइड में, तो कुछ नर्व्स, कुछ वेन्स होंगे जो हार्ट के नीचे से ब्लड कैरी करके हार्ट में लाते होंगे, और कुछ वेन्स ऐसे होंगे जो हार्ट के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लाते होंगे और कहाँ डालते हैं, राइट एट्रियम में. ऊपर से जो ब्लड बेटा आता है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा. बट एनसीईआरटी में इसका जो मेंशन किया हुआ है दैट इज ओनली रिटन वेना केवा. वेना केवा, वेना केवा बेटा सुपीरियर वेना केवा भी होता है, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा. If I talk about the superior vena cava बेटा जो है carry blood above heart, carry blood from body parts which is situated above heart. Okay, that is superior vena cava. Superior vena cava is also called anterior vena cava बेटा, इसको एंटीरियर वेना केवा भी बोलते हैं या फिर प्री कैवल वेन भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री कैवल वेन. वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट द इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स बिलो हार्ट, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स बिलो हार्ट, जो हार्ट के नीचे वाले बॉडी पार्ट से जो वेन्स जो कैरी करती है ब्लड और लाती है राइट एट्रियम में, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर वेना केवा. ओके, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर वेना केवा. एंड दिस इंफीरियर वेना केवा इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर वेना केवा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर वेना केवा और पोस्ट कैवल वेन या फिर पोस्ट कैवल वेन भी बोलते हैं. दिस टू आर नॉट मेंशन इन दी एनसीईआरटी बट यू शुड नो एट लीस्ट. नाउ व्हाट इज दिस बेटा, व्हाट इज दिस, दिस येलो वन इज कॉल्ड SAN. SAN is sinoatrial node, SAN. This is sinoatrial node. We will see shortly what is SAN, AVN. This is AVN. Okay, now what is that valve present between the right atria and the right ventricle? ये दोनों के बीच में जो गेट है उस गेट का क्या नाम है? ये जब right ventricle contract करेगा, we don't want blood to flow back to the right atrium, right? So we need a gate in between these two. What is the name of that gate? Tricuspid valve. What? Tricuspid
ट्राइकस्पिड, यहाँ जो वाल्व होगा बेटा दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व. कैन आई राइट दिस हियर? ओके, ट्राइकस्पिड वाल्व. एक गेट यहाँ प्रेजेंट होगी जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकेगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल. ओके, नाउ व्हाट आर दीज? ये वाइट वाइट स्ट्रिंग टाइप स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज दिस? हाँ, जो वाल्व से कनेक्टेड दिख रहा है ना, वाल्व से कनेक्टेड दिख रहा है, प्लस और किससे कनेक्टेड है? ये वेंट्रिकल्स के मसल से कनेक्टेड दिख रहा है. नहीं, वेंट्रिकल्स के मसल से कनेक्टेड दिख रहा है. सो वेंट्रिकल्स में बेटा देयर इज स्मॉल मस्कुलेचर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैपिलरी मसल्स. ओके, उसको क्या बोलते हैं? ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं ना छोटे छोटे, ये आप देख रहे हो, ये दीज आर स्मॉल टाइनी musculatures found in the ventricular walls. Okay, these are called papillary muscles. What is this? This is papillary muscles. Papillary muscles, इसको papillary muscles बोलते हैं. इसका functions क्या है बेटा? Papillary, these small tiny musculature found in the ventricular walls. What are the function of this papillary muscles? तो ये आप देख रहे हो, यहाँ जो वाल्व है और इस वाल्व से कनेक्टेड है ये वाइट थिन लाइक स्ट्रिंग लाइक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो जो पैपिलरी मसल से अटैच्ड है. किससे अटैच्ड है? पैपिलरी मसल्स. और पैपिलरी मसल्स क्या है? दीज आर स्मॉल मस्कुलर प्रोजेक्शंस फाउंड इन द वेंट्रिकुलर वॉल्स. इसका फंक्शन ये है बेटा, पहले मैं इसका नाम लिख दूं. दीज आर कॉल्ड कॉर्डी टेंडनी. कॉर्डी टेंडनी बोलते हैं बेटा. ठीक है, इसका फंक्शन ये है कि जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे. ठीक है, ओके. और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो वाल्व्स है वो नीचे की तरफ खुल जाते हैं ऐसे, सो डैट कि जो ब्लड का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में हो. ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड शुड बी इन वन डायरेक्शन, एंड दैट्स वाई ये जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये जो स्ट्रिंग्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी. ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये वाल्व ऐसे ओपन हो जाएगी, और जब वाल्व ओपन होगी तो ब्लड एक डायरेक्शन में मूव करेगी और ये एट्रिया से वेंट्रिकल्स में इंटर कर जाएगी. ओके, एंड दिस ऑल्सो प्रिवेंट कि जो वाल्व है वो इसकी इवर्जन है वो वापस इसमें ना चले जाए, अंदर ना चला जाए. सो दैट्स वाई इट्स फंक्शन इज टू प्रिवेंट इवर्जन ऑफ वाल्व. वाल्व्स के इवर्जन को स्टॉप करती है कौन? कॉर्डी टेंडनी. ठीक है, प्रिवेंट इवर्जन ऑफ वाल्व, प्रिवेंट इवर्जन ऑफ वाल्व. ये दोनों ही वेंट्रिकल्स में होते हैं, ये इसमें भी है और इसमें भी है. ठीक है, जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी ये स्ट्रिंग्स जो अटैच्ड हैं पैपिलरी मसल से वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वाल्व्स को नीचे की तरफ खींचते हैं, सो डैट कि एक डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो और वाल्व का इवर्जन ना हो, उल्टा ना चला जाए ऐसे. ठीक है, इसलिए उसको कस के पकड़ के नीचे की तरफ खींचे रहते हैं. ऑलराइट, दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉर्डी टेंडनी, एंड दीज आर अटैच्ड at one end with the papillary muscles and at the one end with the valves of the heart. Now we will see ki these we will see about the nodal tissues beta. ठीक है, सो ये मेरा कुछ हार्ट इस तरह का है. ओके, now this is the left atria, this is the left ventricle, this is the right atria, and this is the right ventricle. Okay, now here is the SA node. क्या है यहाँ पे? SA node है, SA node.
साइनोएट्रियल नोड, वी कॉल इट साइनोएट्रियल नोड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड साइनोएट्रियल नोड। ओके, दिस जनरेट मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, ठीक है, जनरेट्स। दैट इज हाउ मच? एवरेज की अगर हम बात करें तो 70 to 75 टाइम्स पर मिनट एवरेज, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट, दिस इज कॉल्ड ACN इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट। हार्ट का पेस मेकर है बेटा। क्यों है? पेस का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि अपनी पेस बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। पेस मेकर मतलब ये होता है कि ये जो टिश्यूज है, ये जो इससे नोड है, दैट मेंटेन्स द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ओके, मेंटेन्स rhythmic and contractile activity of the heart, contractile activity of the heart, contractile activity of the heart। हार्ट बीट करते रहे, हार्ट रिदम में रहे, उसको मेंटेन SA नोड करती है, ठीक है। नाउ यहाँ पर बेटा होता है हमारा AV नोड। क्या होता है यहाँ? AV नोड। व्हाट इज AV नोड? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की बात करें तो कहाँ प्रेजेंट है? वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में है ना बेटा, ठीक है। ये दोनों ही नोड कहाँ प्रेजेंट है? ये दोनों ही नोड एट्रियम में ही प्रेजेंट है, राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट है। इफ आई टॉक अबाउट द SA नोड इज प्रेजेंट वेयर? in the upper right corner of the right atrium, upper right corner of right atrium, राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पे ऊपर में प्रेजेंट है क्या? SA नोड। ओके, ना कुछ मसल सेल्स होते हैं हार्ट में, ठीक है, मतलब हार्ट जो है हमारा वो भी तो सेल्स का ही बना है, सेल्स से टिश्यूज बने, तो कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, वो स्पेशल फंक्शंस को ग्रहण करते हैं। तो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे ब्रेन्स के सिग्नल्स की आवश्यकता नहीं है, वी विल नॉट वेट फॉर दी सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन, हम खुद से अपना इम्पल्स जनरेट करेंगे। क्या करेंगे? हम खुद से अपना इम्पल्स जनरेट करेंगे, और इसी टिश्यूज़ को, ये जो स्पेशलाइज्ड बन चुका है, इसको बोलते हैं नोडल टिश्यूज़, ठीक है, जो दो प्रकार की होती है, AC नोड और AV नोड। AC नोड जो होता है बेटा वो राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, जिसको साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, और मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, दैट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एवरेज ले लोगे तो 72 टाइम्स। इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। अगर आप हार्ट को निकाल भी लोगे ह्यूमन बॉडी से तो आप देखोगे कि इट विल बीट फॉर सम टाइम। ओके, सो इसके अपने खुद की इम्पल्स जनरेट, खुद की इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ द स्पेशल फंक्शन ऑफ द हार्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। ये पूरी हमने देख ली है लेबलिंग। नाउ what we will see, this is what written, some muscle cells in the heart become स्पेशल बन जाते हैं। These few cells, ये जो कुछ सेल्स हैं वो क्या बोलते हैं? Hey, instead of waiting for the brain to tell us when to beat, let's make our own electricity. हम ब्रेन का इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप मुझे जो है बताओ कब मुझे बीट करना है। We will make our own electricity, we will beat, हम खुद से ही बीट करेंगे। We don't need brain, and that's why heart is myogenic in nature. Okay, now we have seen the nodal tissues, SA and AVN. Okay,
And why the SA node is called the pacemaker of the heart? Because that maintains the rhythmic contractile activity of the heart. And now we will see how heart functions. We will see the cardiac cycle. Okay. Now the cardiac cycle क्या होता है बेटा? Cardiac cycle is the complete sequence of events. Complete sequence of events that occur, कहाँ होता है? हार्ट में होता है. that occur in a heart during one heartbeat. एक heartbeat में बेटा जब एक बार दिल धड़कता है, during a heartbeat, एक बार. तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं? There are three events in a cardiac cycle. Cardiac cycle में कितने होते हैं इवेंट्स? 3 होते हैं. In a cardiac cycle, what are those 3 events? Atrial systole, ventricular systole, and joint diastole. Okay. The first one is atrial systole. Systole means contraction. Systole का मतलब होता है बेटा contraction. Ventricular systole, and the third one is joint diastole. Joint diastole. Okay. If I talk about the timing duration of these, atrial systole में बेटा duration होता है 0.1 second. Ventricular systole का बेटा 0.3 seconds. एंड ज्वाइंट डायस्टोल का बेटा 0.4 सेकेंड्स होता है. ठीक है. नाउ ये कैसे आया बेटा? कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करें बेटा, तो एक मिनट में इन 60 सेकेंड्स हम 72 टाइम्स एवरेज जो है हार्ट बीट करती है. ठीक है. एक सेकेंड में इन एक मिनट में डाटा 60 सेकेंड्स में ऑन एन एवरेज हार्ट बीट्स 72 टाइम्स. ओके. So can I write this here? Okay. So 72 times average, 72 times in 60 seconds. 60 second, that is 1 minute. Okay. तो अगर एक बार हार्ट बीट करता है, if one time हार्ट बीट करेगा तो कितना टाइम लेगा? That is 60 by 72 is equal to 0.8 second. इस 0.8 सेकेंड में बेटा हार्ट एक बार बीट करता है, वो एक बार हार्ट बीट करता है. एंड दैट वन हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 3 इवेंट्स. इस 0.8 सेकेंड में 3 इवेंट्स होते हैं. दैट इज एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल. ओके. जॉइंट डायस्टोल इज 0.4 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 0.3 seconds, and atrial systole is 0.1 second. Systole means contraction. Atrial systole means both the atria will contract. Ventricular systole means ventricular contraction. Both the ventricles will contract simultaneously. ऐसा नहीं है कि left वाला contract करेगा फिर right वाला contract करेगा. No, that is not the case. If I am saying atrial systole, it means both the atria is contracting simultaneously. If I am saying ventricular systole, it means both the ventricles are contracting simultaneously, एक ही साथ. joint diastole का मतलब क्या होता है बेटा? This is not joint systole, this is joint diastole. Okay, this is joint diastole which is of 0.4 second. Diastole कहने का मतलब होता है relax करना. When the chambers are not pumping blood, they are in relaxed state. Okay, that is of 0.4 seconds. Now let's understand this cardiac cycle. The first one is atrial systole.
एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है बेटा तो क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल. ओके, एट्रियल सिस्टोल. एंड हियर आई विल राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा बेटा, एंड वी विल सी सेपरेटली जॉइंट डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल. ओके, अब पढ़ेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है. एट्रिया जब दोनों ऊपर का चैम्बर जो है एट्रिया, बोथ लेफ्ट एंड द राइट बोथ जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा इवेंट. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा भैया बेटा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, इस टाइम क्या होगा, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस समय वेंट्रिकल्स का क्या होगा बेटा, सिचुएशंस, वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में होंगे. ठीक है, वेंट्रिकल्स क्या होंगे, रिलैक्स स्टेट में होंगे. ठीक है, वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स, बोथ वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड. जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में होंगे, और जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रिया रिलैक्स स्टेट में होगा. ठीक है, नाउ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसमें वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में. नाउ ये एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हाउ कैन आई मिस दिस पॉइंट, एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको कोई सिग्नल देगा तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना. इसको सिग्नल देने के लिए कौन है, SAN, साइनो एट्रियल नोड फायर्स. ओके, तो SAN फायर करेगा बेटा. ठीक है, ओके, SAN फायर्स. SAN जब फायर करेगा, फायर मतलब क्या, सिग्नल इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा. वो सिग्नल प्रोड्यूस जैसे ही करेगा, जैसे ही इम्पल्स जनरेट करेगा, वैसे एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, और एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने से 30% वेंट्रिकुलर फीलिंग्स होती है, 30% वेंट्रिकुलर फीलिंग्स. ठीक है, वेंट्रिकल्स में बेटा 30% ब्लड फिल कर जाएगी. एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल्स 30% ब्लड उसमें फिल कर जाएगी. नाउ एट दिस टाइम बोथ वाल्व, AV वाल्व दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, बोथ वाल्व्स आर ओपन. AV वाल्व्स आर ओपन, तभी तो जाएगा ना एट्रियोवेंट्रिकल में ब्लड. इफ आई टॉक अबाउट द सेमीलुनर वाल्व, सेमीलुनर वाल्व्स आर closed. Semilunar valves are closed at this time. And if I talk about the valve of superior vena cava, superior vena cava, inferior vena cava and coronary veins जो होते हैं उनकी valve की अगर बात करें, that are closed. वो क्लोज नहीं होगा तो ब्लड जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बैकफ्लो हो सकता है ना, इसीलिए. नाउ एट्रिया सिस्टोल हो गया. नाउ अब जब SAN जब फायर किया तो ये हुआ. अब SAN जो फायर किया बेटा, अब वो इम्पल्स जाएगा किसके पास, AV के पास जाएगा. किसके पास जाएगा, AV के पास, AV नोड के पास जाएगा. और AV नोड के पास AV बंडल ऑफ हीज, एंड देन प्रोकिंजियल फाइबर से पूरे वेंट्रिकुलर वॉल्स में चली जाएगी इम्पल्स, और फिर पूरा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बहुत ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा. उसमें मसल्स थिक होती है, बहुत सारे मसल्स होते हैं, बिकॉज इट हैज़ टू पंप ब्लड, उसको पूरे बॉडी में भेजना है ब्लड को, तो इट हैज़ टू बी एट हाई प्रेशर, एंड दैट्स व्हाई मोर मसल्स आर प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स. ओके, नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल की हम बात करें बेटा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की अगर हम बात करें तो वेंट्रिकल्स, अब वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा तो एट्रिया रिलैक्स करेगा. इस समय एट्रिया की अगर हम बात करें तो एट्रिया रिलैक्स स्टेट में होगा, एट्रिया रिलैक्स स्टेट. ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, AV वाल्व क्लोजेज, AV वाल्व बेटा बंद हो जाती है, खटाक से बंद हो जाती है, सो डैट कि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो, वो बैकवर्ड फ्लो होकर एट्रिया में ना जाए. इसलिए जो गेट है
दिस इज टू गेट, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, ये दोनों ही बंद हो जाती है जैसे ही ये नीचे वाला चैम्बर्स द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करना वैसे खटाक से गेट बंद हो जाएगी, ठीक है। और जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट जो प्रोड्यूस होती है बेटा उसको बोलते हैं लब, LUB, लब साउंड। लब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय द क्लोजर ऑफ AV वाल्व, ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व। AV वाल्व के बंद होने से द फर्स्ट साउंड लब साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नाउ एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल और बढ़ता है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज होती है वेंट्रिकल्स की, ठीक है, प्रेशर और बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे जैसे और बढ़ेगा तो सेमीलुनर वाल्व्स तो क्लोज है, यहाँ तो सेमीलुनर वाल्व्स क्लोज है, तो जैसे जैसे वेंट्रिकल्स और कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है, वेंट्रिकुलर प्रेशर और इंक्रीज होती है, इट पुश ओपन द सेमीलुनर वाल्व्स। सेमीलुनर वाल्व्स बेटा खुल जाएंगे, ठीक है। तो एज further ventricular pressure increases, ventricular pressure increases, push open प्रेशर के कारण बेटा सेमीलुनर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं। पुश ओपन द सेमीलुनर वाल्व, सेमीलुनर वाल्व बेटा ओपन हो जाते हैं। सेमीलुनर वाल्व्स किस में प्रेजेंट है? अयोटा में and the pulmonary artery में। aorta is connected to this left ventricle से aorta निकल रही है, ठीक है, और pulmonary artery किससे निकल रही है? right ventricle से। किससे? right ventricle से। pulmonary artery deoxygenated blood कैरी करती है, aorta ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पूरे होल बॉडी के पास पहुंचाती है। तो जैसे ही वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ता है, प्रेशर और बढ़ती है, तो जो सेमीलुनर वाल्व्स अयोटा में और जो पल्मोनरी आर्टरी में है जो बंद थे वो वेंट्रिकुलर प्रेशर्स के कारण वो ओपन हो जाती है और ब्लड बेटा वेंट्रिकल से अयोटा में जाती है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाती है। अयोटा पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचा देगी और पल्मोनरी आर्टरी से दोनों लंग्स के पास चली जाती है। तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम ventricles to aorta. Okay, can I write in the next page? Okay, so as सेमीलुनर वाल्व्स ओपन होती है बेटा, सेमीलुनर वाल्व्स ओपन हो गई, ठीक है, तो इससे क्या हुआ? ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स, दैट इज लेफ्ट ventricle and right ventricle flows to aorta and pulmonary artery respectively. Pulmonary artery respectively. ये अयोटा बेटा पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है, होल बॉडी। ओके, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या कैरी करती है? अयोटा कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है अयोटा, वेयर एज पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी। ओके, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाती है? टू दी लंग्स, बोथ लंग्स के पास ले जाती है, ठीक है ना। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हुआ क्या? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जैसे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, द एवी वाल्व, इस समय एट्रिया की अगर हम सिचुएशंस की बात करें तो एट्रिया रिलैक्स स्टेट में, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जैसी वेंट्रिकल स्टार्ट करेगी कॉन्ट्रैक्ट करना, एवी वाल्व क्लोज हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व, उनके क्लोज होने से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज लब, LUB लब,
as ventricular systole start contracting more, ventricular pressure और ज़्यादा बढ़ने लगता है तो सेमिलूनर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं, फोर्स के कारण, वेंट्रिकुलर प्रेशर के कारण सेमिलूनर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं। सेमिलूनर वाल्व्स ओपन होने के कारण जो ब्लड है वेंट्रिकल्स में वो अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में चले जाते हैं। अयोटा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द होल हार्ट and the pulmonary artery carry deoxygenated blood from right ventricles to both the lungs. ये बेटा हुआ ventricular systole which is of 0.3 seconds. Now we will now discuss about the third event of cardiac cycle, that is joint diastole. Joint diastole. Joint diastole क्या होता है बेटा? ज्वाइंट डायस्टोल में ऑल द 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, ठीक है। ऑल द 4 चैम्बर्स, चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं। ऑल द 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंड राइट, ऑल 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट। नाउ ये ज्वाइंट डायस्टोल बेटा 0.4 सेकेंड का होता है, 0.4 सेकेंड्स। नाउ व्हाट हैपन्स इन ज्वाइंट डायस्टोल, जैसे ही वेंट्रिकल्स डायस्टोल रिलैक्स होना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर डाउन होगा, जैसे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करने स्टार्ट करेंगे, वैसे ही बेटा जो हमारा सेमीलूनर वाल्व्स है अयोटा में और आर्टरी में, जो सेमीलूनर वाल्व्स है वो सेमीलूनर वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो at the beginning of what, ventricular diastole, ventricular diastole, सेमीलूनर वाल्व्स क्लोजेस, सेमीलूनर वाल्व क्लोज होती है बेटा, और इसके क्लोज होने से सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज डब। सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड DUB, दिस इज कॉल्ड डब। तो जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होना स्टार्ट करेगी, जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर डाउन होगा, वैसे ही खटाक से सेमीलूनर वाल्व्स बंद हो जाती है अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी की, सो डैट कि उसमें जो ब्लड पंप हुई है वो वापस वेंट्रिकल्स में ना आ जाए। इसीलिए जो गेट है, सेमीलूनर वाल्व्स आर लाइक गेट ऑफ द वेन्स। सो जैसे ही रिलैक्स होगा, प्रेशर कम होगा, तो जो ब्लड है वेन्स में, जो अयोटा में और जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है, दे कैन मूव बैक टू दी वेंट्रिकल्स। सो इन ऑर्डर टू prevent that backflow of the heart blood towards the ventricle, these 2 gates, semilunar valves gates, are closed as the pressure of the ventricles reduces, okay, and this closure of the semilunar valves produces the second sound of the heart, that is called dub, DUB. So lub and dub, ये दोनों ही साउंड गेट के बंद होने से प्रोड्यूस होते हैं। Closure of the gate produces these sound lub and dub. And what are those gates? The first one lub sound is produced by the closure of AV valve, and the second sound dub is produced by the closure of semilunar valves. Okay. Now further reduce in ventricular pressure. Further reduce in ventricular pressure, ventricles और रिलैक्स होगी बेटा। This push open the AV valves बेटा ओपन हो जाएगी। AV valves will open जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर और डाउन होगा, जैसे वेंट्रिकल्स और रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल्स का प्रेशर डाउन होगा, तो जो AV valve है बेटा वो खुल जाएगी और एट्रिया से पैसिव फीलिंग
वेंट्रिकल्स की होगी, ठीक है। तो ब्लड जो एट्रियम में फिल हो रही थी वो ब्लड पैसिवली वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे और वो 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग्स होती है, ठीक है। 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। तो पुश ओपन द AV valves and blood flows from atria to ventricles। एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो करती है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो करती है, ठीक है। एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो करती है, कितना करती है बेटा, कितना करती है, 70%, ठीक है। तो as reduction or reduce in ventricular pressure, जैसे ही प्रेशर डाउन होगी वेंट्रिकल्स की और ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में जाएगा वेंट्रिकल्स, this will open the AV valves that is bicuspid and the tricuspid valve, okay। blood flows from atria to ventricles, ठीक है। ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फ्लो कर जाएंगे एंड दिस इज 70% वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है बेटा, कितना होती है, 70% वेंट्रिकुलर फीलिंग which is passive, okay। this one is important, 70% वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है। सो इफ आई टॉक अबाउट कि वेंट्रिकल्स में जो ब्लड फिल हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर फीलिंग जो हो रही है बेटा, 30% एट्रियल सिस्टोल की वजह से हो रही है। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो 30% उससे वेंट्रिकल्स फिल हो जाती है ब्लड से, ठीक है। 30% ब्लड फिल हो जाती है। जॉइंट डायस्टोल के वक्त क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल के वक्त जैसे वेंट्रिकल्स का प्रेशर डाउन होता है तो AV valves ओपन हो जाता है और एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाते हैं एंड दैट इज 70% वेंट्रिकुलर फीलिंग्स होती है। सो इफ आई कैन राइट कि वेंट्रिकुलर फीलिंग्स वेंट्रिकुलर फीलिंग्स से अगर हम बात करें, ओके, तो वेंट्रिकुलर फीलिंग्स बेटा 30% इज बाय एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तब 30% वेंट्रिकल्स फील हो रही है एंड द रेस्ट 70% इज बाय जॉइंट डायस्टोल। जब चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, जब चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो उस समय 70% वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है, ओके। नाउ दिस एट्रियल सिस्टोल जब एट्रिया कॉन्टैक्ट करता है, दिस इज रैपिड एंड एक्टिव। दिस इज व्हाट, दिस इज रैपिड, क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट की और 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो गया, ठीक है, रैपिड एंड एक्टिव। वेयर एज दिस 70% वेंट्रिकुलर फीलिंग इज पैसिव इन नेचर, ये पैसिव इन नेचर होता है, ठीक है। पैसिव इन नेचर होता है, आउट ऑफ विच 1/3 इज रैपिड एंड 1/3 इज स्लो ड्यू टू ग्रेविटी। आउट ऑफ दिस 1/3 इज रैपिड एंड 1/3 इज स्लो ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। हो क्या रहा है इसमें ये हो रहा है बेटा कि जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल बिगन्स होती है, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर रिड्यूस होता है, फर्दर रिड्यूस होता है, फर्दर रिड्यूस होता है, तो जो AV वाल्व्स है वो ओपन हो जाते हैं खटाक से और जितने भी उसमें एट्रिया में ब्लड है दैट 1/3 रैपिडली वेंट्रिकल्स में फिल हो जाते हैं। रैपिडली 1/3 ब्लड जो है वो
एंड वेंट्रिकल्स में फील हो जाते हैं, एंड रेस्ट जो बचा 1/3 दैट इज स्लो एंड ग्रेजुअली ड्यू टू ग्रेविटी वो फील होते हैं, ठीक है। दिस एंड दिस, ये दोनों को मिला के 70% वेंट्रिकुलर फीलिंग्स होती है हमारी ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल विच इज ऑफ 0.4 सेकेंड। ये 0.4 सेकेंड होता है, और एट्रियल सिस्टोल हमारा होता है 0.1 सेकेंड। नाउ वेंट्रिकुलर फीलिंग्स हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है, हार्ट रेट क्या होता है, एंड कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ठीक है। नाउ देयर आर सम टर्म्स दैट वी मस्ट नो कि ये सब का मतलब क्या है। द फर्स्ट वन इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, volume of blood that is pumped by each ventricle during a heartbeat, okay, during a cardiac cycle. Amount of or the volume of blood pumped by each ventricle, okay, pumped by each ventricle during a heartbeat, ठीक है। एक बार हार्ट बीट करेगी तो ईच वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप आउट करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 70 ml, ओके। एक बार हार्ट बीट करेगी तो हार्ट का जो वेंट्रिकल्स है वो कितना ब्लड पंप करती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 70 ml, ओके। ईच वेंट्रिकल्स की बात कर रही है बेटा, ठीक है। नाउ स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद आता है बेटा हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट रेट मीन्स नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। एक मिनट में कितने बार हमारा हार्ट ने बीट किया, एक मिनट में हमारा हार्ट ने कितने बार बीट किया, दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट एंड ऑन एन एवरेज इट इज 72 टाइम्स। एक मिनट में 72 बार हमारा हार्ट बीट करता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट। नाउ व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट क्या होता है बेटा? कार्डियक आउटपुट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by the heart in a minute। एक मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by heart in a minute। एक मिनट में कितने बार हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। तो एक मिनट में कितने बार हमारा दिल बीट करता है, दैट इज 72 टाइम्स। और एक हार्ट बीट में हमारा हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, दैट इज 70 ml। तो कार्डियक आउटपुट बेटे क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विथ हार्ट रेट, okay। The stroke volume is 70 ml into 72, okay। तो approximately बेटा ये आता है 5000 ml और you can say 5 liter। So एक मिनट में in 1 minute our heart pumps approximately 5000 milliliter of blood or 5 liter of blood and that is called cardiac output, ठीक है। Now अब बेटा हम समझेंगे ECG। So if we can summarize all the 3 events in a cardiac cycle, that is atrial systole, ventricular systole and the joint diastole, so we can
summarize this by using a diagram. Let's understand this. This atrial systole, wait, this atrial systole I can draw like this. This is atrial systole which is of 0.1 second. This is ventricular systole which is of 0.3 seconds and this is joint diastole which is of 0.4 second का है बेटा, ठीक है। Now ये जो पहला जो हमें साउंड सुनने को मिलता है लब, LUB लब, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ AV valves here, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो पहला साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज लब हियर, ओके, LUB। एंड डब साउंड प्रोड्यूस होती है व्हेन वेंट्रिकुलर डायस्टोल्स बिगिन, सो हियर 0 डब, सेकेंड साउंड, ओके, DUB। तो यहाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुई यहाँ से, तो AV valves क्लोज हुए और लब साउंड प्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट साउंड, ओके, फर्स्ट साउंड। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हुआ एंड डायस्टोल बिगन्स हुआ। जैसे डायस्टोल बिगिन होगी वैसी दूसरी साउंड प्रोड्यूस होगी, डब, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर valves. This is the second sound produced, second sound, that is dub. So what is the duration between the first sound of the heart and the second sound of the heart? That is 0.03 seconds. अगर आप पहली साउंड लब सुन रहे हो तो दूसरी साउंड डब आप 0.3 सेकेंड्स के बाद सुनोगे। अगर आप सेकेंड साउंड पहले सुनते हो DUB डब, तो पहली साउंड कब सुनोगे? आपने डब सुनी, उसके बाद पहली जो साउंड होगी लब, ये इतने ड्यूरेशन के बाद होगी, इतने ड्यूरेशन के बाद। ये कितनी ड्यूरेशन है? 0.4 एंड 0.1, 0.5 सेकेंड्स के बाद आप दूसरी साउंड सुनोगे। सो ड्यूरेशन बिटवीन, इफ आई कैन राइट, ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड साउंड, पहला और सेकेंड के बीच में जो ड्यूरेशन है दैट इज 0.3 सेकेंड्स है। एंड ड्यूरेशन बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट साउंड के बीच का ड्यूरेशन अगर बेटा बोले तो दैट इज, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द फर्स्ट, सो 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड्स, ओके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ECG, ECG, electrocardiogram, okay. What is ECG? ECG क्या है? ECG is a graphical representation of electrical activity of heart, electrical activity of heart in a cardiac cycle. हमारा हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, whether our heart is functioning properly or not, whether something is issue in our heart, all those are studied by a machine called electrocardiograph. The machine is called the electrocardiograph and the report that we get is called electrocardiogram. So the machine is called, machine को बोलते हैं बेटा electrocardiograph, electrocardiograph बोलते हैं, मशीन को बोलते हैं, ठीक है। एंड द रिपोर्ट दैट वी गेट, जो रिपोर्ट हमें मिलता है फिजिकल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो कैन आई राइट हियर द रिपोर्ट और द पेपर दैट वी गेट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसको बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके। ECG में बेटा जो NCERT में मेंशन है दैट इज स्टैंडर्ड ECG की बात करी गई है, उसमें
मेनली हम लोग 3 लीड्स यूज करते हैं. ओके, स्टैंडर्ड ईसीजी. स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में एनसीईआरटी ने लिखी है. स्टैंडर्ड ईसीजी में we use 3 leads. How many leads? 3 leads. Okay, 3 leads. 1 to each wrist. 1 to each wrist. दोनों कलाई में, ठीक है. And 1 to left ankle. And 1 to left ankle. लेफ्ट साइड हमारी हार्ट होती है. 1 to left ankle. लेफ्ट साइड हमारी हार्ट होती है, तो आप इससे याद रख सकते हो कि हमारे लेफ्ट एंकल में एक लीड्स लगती है और दोनों कलाई पे रिस्ट लगती है. टू स्टडी द फंक्शंस ऑफ द हार्ट, टू नो हाउ द हार्ट इज वर्क, वेदर द हार्ट इज वर्किंग वेल और नॉट. ओके, ये स्टैंडर्ड ईसीजी. और डिटेल में अगर हमें चाहिए होता है स्टडी करना, देन वी यूज मल्टीपल लीड्स. अगर डिटेल अगर हमें स्टडी करनी होती है बेटा, डिटेल, सो यू यूज़ मल्टीपल लीड्स. आपने देखा होगा मूवी वगैरह में या फिर टीवी में कि चेस्ट वगैरह रीजन में लीड्स लगा देते हैं, है ना. बहुत सारे लीड्स लगा देते हैं, पैर में भी हाथ में भी लगा देते हैं. सो डिटेल्ड स्टडी करने के लिए हार्ट के फंक्शंस को मल्टीपल लीड्स का हम लोग यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हमें जो रिपोर्ट मिलती है उसमें वेव्स बने होते हैं ना, डिफरेंट काइंड्स के वेव्स होते हैं. तो उनका मतलब क्या होता है, व्हाट डज दैट इंडिकेट इज, लेट मी ड्रॉ अ लाइन फॉर यू. ओके, नॉट दिस वन, आई गेस. शेप, आई नीड अ शेप and I need a shape of, there is no line. Okay, all right. Okay, so it is something like, the graph looks something like this. The graph looks something like this. I have drawn two waves. Okay, now two heartbeat, I mean this is P, this is called P, Q, R, S, and this is T wave. Now P is for, ये बेटा क्या इंडिकेट करता है, this wave P is for atrial systole. Atrial systole, ओके, एट्रियल सिस्टोल मीन्स एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी और कॉन्ट्रैक्ट. ओके, और यू कैन से डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीपोलराइजेशन. सो फॉर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन. तो जब भी हमारी मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में होती है, दिस इज द मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन इज इन रेस्टिंग स्टेट. दिस इज द मेम्ब्रेन विच इज इन रेस्टिंग स्टेट. ओके, नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स. सो ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज अ नेगेटिव चार्ज इनसाइड द मेम्ब्रेन and the positive charge outside the membrane, and this state is called the polarized state, and this state is called the polarized state, और इसको बोलते हैं बेटा polarized state. Now when the impulse come, जब भी impulse या signals आती है तो depolarization हो जाता है. It means कि whatever negative charge is inside the membrane will come outside and the positive charge will come inside, and there is a reversal of charge during the depolarization of the membrane. Okay, so depolarization of atria means as the ACN fires, the atria contracts
पहले रिलैक्स स्टेट में था, इस स्टेट में था। जैसे सिग्नल एंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है SAN, देन एट्रिया हमारी डीपोलराइज्ड हो जाती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस QRS कॉम्प्लेक्स? दिस QRS complex is the depolarization of ventricles. Depolarization of ventricles. Okay. Depolarization of ventricles means what? Ventricular systole हो रही है, क्या हो रही है? Ventricles contract कर रही है हमारी, और you can say ventricular systole or depolarization of ventricle or contraction, ठीक है। That is what QRS complex this wave is showing. Now what is T wave? T wave is repolarization of ventricles. This is repolarization of ventricles बेटा अपने एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ रही है, ठीक है। नाउ repolarization of ventricles means one, ventricles are coming from the excited state to its relaxed state. Returning of ventricles from excited state to relaxed state. Okay. This is what T wave represents. This is the one heartbeat. एक heartbeat में बेटा P wave, QRS wave and T wave आती है. This is the second one. So अगर हम QRS कॉम्प्लेक्स को हम काउंट करें 1 मिनट में कितनी बार ये वेव्स आया है, देन वी कैन कैलकुलेट दी हार्ट रेट. सो हार्ट रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग दी हार्ट रेट. ओके, हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर मुझे ये मिला रिपोर्ट मिला, देन 1 मिनट में टाइमिंग ड्यूरेशन में हम देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि ये QRS कॉम्प्लेक्स जो वेव है कितनी बार 1 मिनट में अपीयर हुआ है. सो काउंटिंग दैट QRS कॉम्प्लेक्स इन अ मिनट वी कैन गेट हार्ट रेट का पता चल जाएगा, विच इज़ एन एवरेज ऑफ 72. अगर हमने 1 मिनट में देखा कि 72 टाइम्स ये QRS वेव प्रेजेंट है, इट मीन्स कि आपका हार्ट की एक्टिविटी सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन योर हार्ट एज सच. ठीक है. सो बाय काउंटिंग QRS complex, by counting QRS complex in a minute. 1 मिनट में कितने बार ये वेव्स QRS अपीयर हुआ है, जितने बार होगा दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट. और हमारा ऑन एन एवरेज कितना होता है? हार्ट रेट इन अ मिनट इज 72 टाइम्स. 72 बार, हमें 72 बार ये वेव्स दिखने चाहिए 1 मिनट में उस रिपोर्ट में, तभी हमारा हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली. अदरवाइज देयर इज सम इशू इफ इट डिविएट्स फ्रॉम द 72. नाउ दिस इज द ECG. मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या है बेटा? लिम्फ वो दरिया है जिससे न्यूट्रिएंट्स और गैस को तैर के टिश्यूज के पास, सेल्स के पास पहुंचना है. ठीक है. तो जो आर्टरीज होती है, जो वेन्स होती है बेटा, वो फर्दर डिवाइड करती है. सी, आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में डिवाइड करती है, और आर्ट्रियोल्स फिर कैपिलरीज में बहुत ही थिन सिंगल सेल्स के बने होते हैं. कैपिलरीज आर मेड ऑफ सिंगल सेल्स एंड दैट सेल्स नेम इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ऑल्सो कॉल्ड एंडोथेलियम भी बोलते हैं उसे. ठीक है. तो जो कैपिलरीज होती है बेटा बहुत ही पतली होती है, उससे जब ब्लड मूव करता है बहुत ही हाई प्रेशर में मूव करता है, तो उस ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी गैसेस होंगे, वो छन के टिश्यूज़ में, सेल्स के स्पेसीज के बीच में आ जाती है. ठीक है. वो जो छन के आ जाती है सेल्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसको बोलते हैं. ठीक है. सपोज कीजिए आप कि दिस इज आर्टरी. ये क्या है बेटा? आर्टरी है. आर्टरी फर्दर डिवाइड होगा बेटा किसमें? एट्रियोल्स में. ठीक है. एट्रियोल्स में डिवाइड हो गया. फिर एट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होगा बेटा आपका किसमें?
कैपिलरीज में, वेरी थीन, ठीक है, बहुत ही पतला, ठीक है, कैपिलरीज में, ठीक है। और आप मान लीजिए इधर से वेन, वेन्यूल्स और वेन्स, ठीक है, वेन्स, वेन्यूल, this one is artery, this one is capillary, capillary, कैपिलरी है बेटा। दिस वन इज एट्रियोल, ये एट्रियोल है, एंड दिस वन इज आर्टरी, ये आर्टरी है। इससे ब्लड हमारी मूव कर रही है, ठीक है, ब्लड 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 आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है, इसमें ब्लड है। और ये इतनी पतली होती है, सिंपल सेल्स की बनी होती है, सिंगल सेल्स की बनी होती है ना, तो ब्लड इसमें हाई प्रेशर्स में मूव करती है, तो ब्लड इससे छन जाती है, ठीक है, ब्लड फिल्टर्ड हो जाती है। और यहाँ हमारा क्या है, हमारा यहाँ टिश्यूज है। लेट्स से वी हैव टिश्यूज हियर। टिश्यूज किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं, तो ये सेल्स हैं, ठीक है ना। ये जो छन के आ जाते हैं बेटा, वेट, ये छन के नीचे कैपिलरी से आ गए, ठीक है। ये जो छन के आ रहे हैं और सेल्स के बीच में और टिश्यूज के बीच में ये जो लिक्विड है बेटा, इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड जो सेल्स के बीच में, सेल्स के स्पेस के बीच में जो होते हैं बेटा, ये सेल्स को प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, वॉट एवर इट इज प्रोवाइडेड टू द सेल्स। नाउ देयर इज अ लिम्फैटिक वेसल्स होते हैं बेटा, ठीक है, लिम्फैटिक वेसल्स। और लिम्फैटिक वेसल्स फिर फाइनली ये ज्वाइन कर जाते हैं सिस्टेमिक वेन में, ठीक है। कहाँ ज्वाइन कर जाते हैं, सिस्टेमिक वेन में, ठीक है, ये सिस्टेमिक वेन में जाकर ज्वाइन कर जाते हैं। ये जो लिम्फैटिक वेसल्स है बेटा, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड जो भी होता है, टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसको कैरी करता है, ठीक है। इसके अंदर ये फ्लूइड जब जाती है, तो लिम्फैटिक वेसल्स में जब इंटर कर जाती है टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट फ्लूइड, उस फ्लूइड का नाम चेंज हो जाता है और उससे बोलते हैं लिम्फ। नाउ दिस इज कॉल्ड लिम्फ। अब बेटा इसे हम बोलेंगे लिम्फ, क्योंकि अब ये आ गया है किसमें, लिम्फैटिक वेसल्स में आ गया है। उससे पहले सेल्स के स्पेसेस के बीच में थे तो उसे टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल रहे थे, बट द मोमेंट दिस फ्लूइड इंटर्स इनटू द लिम्फैटिक वेसल्स, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। उसको बेटा लिम्फ बोलने लगते हैं, ठीक है, ठीक है, उसको लिम्फ बोलने लगते हैं ना। और ये फिर जो है, लेकिन द क्वेश्चन इज दैट कि क्या क्या इसमें फिल्टर्ड होते हैं, क्या सब चीज़ फिल्टर्ड हो जाते हैं क्या ब्लड से? नो, द लार्ज प्रोटीन्स एंड सम फॉर्म्ड एलिमेंट्स लाइक RBCs एंड प्लेटलेट्स आर नॉट फिल्टर्ड एंड दैट्स व्हाई लिम्फ इज कलरलेस। लिम्फ क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है, ओके। लिम्फ इज कलरलेस बिकॉज RBC बेटा फिल्टर्ड नहीं होती है। RBC में हीमोग्लोबिन होती है ना, इसलिए वो रेड कलर की होती है। तो लिम्फ बेटा कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। बिग प्रोटीन्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, बिग प्रोटीन्स एंड some formed elements to be specific, if I talk about, then RBC and platelets are not filtered, ये filtered नहीं होते हैं, ठीक है। If I talk about the mineral composition is same as that of plasma। प्लाज्मा में जो मिनरल कॉम्पोजिशन होती है वही लिम्फ की भी होती है, ठीक है। तो मिनरल कॉम्पोजिशन is same as that of प्लाज्मा की जो मिनरल कॉम्पोजिशन होती है वही मिनरल कॉम्पोजिशन
लिम्फ की भी होती है, ठीक है। नाउ लिम्फ का बेटा फंक्शन मेनली इम्यून रिस्पॉन्स में होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स वगैरह लिम्फेटिक वेसल्स में होते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। lymphocytes, T lymphocytes, B lymphocytes, all these are the lymphocytes present in the lymphatic vessels. Okay, B and T. B lymphocytes antibodies produce करती है and T lymphocytes बेटा mainly cell graft rejections में role play करती है. Now we will see regulation of heart rate or the cardiac activity. Okay. Now the topic name is regulation of heart rate or cardiac activity. वैसे तो बेटा हार्ट के पास अपना नोडल टिश्यू है तो वो बीट कर सकता है, ठीक है। बट हार्ट रेट का बढ़ना, हार्ट रेट का घटना बेटा वो ब्रेन में मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हार्ट रेट और द कार्डियक आउटपुट। ओके, सो व्हाट प्लेज रोल इज मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। इन ब्रेन, ओके, medulla oblongata in brain plays role in regulation of the heart rate or the cardiac activity. Now this play role through ANS, autonomic nervous system. Okay, now autonomic nervous system beta दो है, sympathetic and parasympathetic, sympathetic and parasympathetic. Okay, parasympathetic. What is sympathetic and parasympathetic? बेटा सिंपैथेटिक में हर चीज़ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज हो जाती है। यहाँ मैं हार्ट की बात कर रही हूँ, स्पेशली हार्ट एक्टिविटी की बात कर रही हूँ। तो सिंपैथेटिक की अगर मैं बात करूँ बेटा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज होने का मतलब यहाँ है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है, एंड दस कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज। वेयर एज इन पैरासिम्पैथेटिक की हम बात करें तो दिस वट एवर आई हैव रिटन हियर इन इंक्रीजिंग फॉर्म, हियर इट विल डिक्रीज, हार्ट रेट विल डिक्रीज, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन विल डिक्रीज एंड therefore cardiac output will decrease, ठीक है। Now this is how heart rate or the cardiac activities is regulated by the medulla oblongata, and there is one more, that is adrenal medullary hormones also plays role in its regulation. Okay, this is what written in your NCERT textbook. थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये रिवाइज हो गया होगा पूरी चैप्टर्स, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।